یہاں آپ کو بتائیں عمران خان کی ایک کے بعد ایک وکٹ گرنے لگی۔ فیصل آباد ڈویژن میں پی ٹی آئی کے کھلاڑی پارٹی کا میدان چھوڑنے لگے۔ مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور سابق ایم این اے شیخ خرم شہزاد بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ سابق ایم پی اے وارث عزیز نے بھی تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے عمیر عظمت کی رپورٹ۔ کے پرتشدد واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور سابق ایم این اے شیخ خرم شہزاد نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ 11 سالہ رفاقت ختم کر دی۔ پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ بغیر کسی دباؤ کے پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اقامہ والا سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے اور کسی بے گناہ سے کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہم پاک فوج کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں کسی دباؤ کے بغیر، کسی پریشر کے بغیر ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکز پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی میاں وارث عزیز نے بھی پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ انتہائی غلط تھا۔ پی ٹی آئی اداروں پر حملے کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی۔ ملک اور اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ 13 سالہ رفاقت ختم کرتا ہوں۔ فیصل آباد ڈویژن سے اب تک فیض اللہ کموکا، شیخ خرم شہزاد، میاں وارث عزیز، سابق صدر ایف سی سی آئی ضیاء علمدار حسین اور چنیوٹ کے ضلعی صدر ذوالفقار حسین شاہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید اعلانات کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین معظم علی اور ساتھی رپورٹر فصیح نقوی کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے 101 شرپسندوں کے نام اور تصاویر جاری۔ شرپسندی میں ملوث ہونے کے شواہد ملنے پر فہرست جاری کی گئی اور لسٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں میں فیصل آباد کا ایک اور توبہ کے 2 شرپسند بھی ملوث نکلے۔ دوسری جانب حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا کیس فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے علی افضل شاہی اور جنید افضل شاہی کی ضمانت سماعت تک منظور کر لی۔ اور ناظرین، الیکشن کمیشن نے این اے 108 میں الیکشن منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے حلقے میں ضمنی الیکشن روکنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے این اے 108 میں الیکشن منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے حلقے میں ضمنی الیکشن روکنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا این اے 108 میں الیکشن منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے حلقے میں ضمنی الیکشن روکنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دے دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت 74 روپے تک مارکیٹ سے کم پر دستیاب ہوں گی۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے ٹویٹ کرتے قیمتیں کم ہونے کا اعلان کیا گیا۔ مختلف برانڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں 74 روپے تک کمی کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے ٹویٹ کرتے قیمتیں کم ہونے کا اعلان کیا۔ مختلف برانڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں 74 روپے تک کم کی گئیں۔ برانڈڈ گھی کی قیمت مارکیٹ سے 8 روپے سے 35 روپے فی کلو کی کمی کی گئی۔ برانڈڈ گھی یوٹیلیٹی سٹورز پر 545 سے 577 روپے تک دستیاب ہوگا۔ 20 روپے کمی سے سبسڈائز گھی عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز پر 490 روپے کا دستیاب ہوگا۔ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 40 روپے سے لے کر 76 روپے فی لیٹر کمی ہوئی۔ کوکنگ آئل یوٹیلیٹی سٹورز پر 540 سے 590 روپے میں دستیاب ہوگا۔ اور ناظرین، اب چینی پر بھی لگے گا سپر ٹیکس۔ بجٹ میں 10% ٹیکس عائد ہونے کے بعد چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ شوگر ڈیلرز نے حکومت سے مزید ٹیکس نہ لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ شراز بٹ کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اور شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب کے وائس چیئرمین اسلم بھلی کہتے ہیں دیگر سیکٹرز کی طرح حکومت چینی پر بھی سپر ٹیکس لگانے جا رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ ہم مزید ٹیکسز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جو حکومتی آرڈر آ گیا ہے کہ 10% جو سپر ٹیکس لگنے جا رہا ہے 15 کروڑ انکم سے زیادہ پہ، اس کا بھی لازمی بات ہے کہ چینی کی پرائسز پہ فرق پڑے گا اور یہ ان کو واپس لینا چاہیے۔
असलम बली ने कहा कि 10% सुपर टैक्स आयद होने के नतीजे में चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी। महंगाई में चीनी जैसी बुनियादी अशिया जरूरियात सस्ती होनी चाहिए। कि चीनी को पैदा करने के लिए हमारा किसान जो गन्ना उगाता है उसके लिए फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। ये फर्टिलाइज़र पे भी 10% जो है सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, वो भी तो अल्टीमेटली हमारी क्रॉप के ऊपर ही पड़ना है ना। ताजर कहते हैं हुकूमत मजीद टैक्स लगाने के बजाय महंगाई से तंग शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, स्पिनिंग सेक्टर बंदिश का बोझ साइजिंग और पावरलूम सेक्टर पर शदीद होने लगा। सनतकार फैक्ट्रियां चलाने से कतराने लगे। मजदूरों की बड़ी तादाद को रोजगार की फिक्र लग गई। गुलाम मोहम्मदाबाद में 70% साइजिंग यूनिट बंद, लागत ज्यादा कमाई कम रह गई। बचे हुए यूनिट सिर्फ अपना और मजदूर का भरम रखे हुए हैं। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज ने हालात की संगीनी से खबरदार कर दिया। टेक्सटाइल शोबे के तमाम सेक्टर एक एक करके मुश्किलात के भंवर में फंसने लगे। स्पिनिंग के 50% से ज्यादा यूनिट्स बंद हुए तो साजिंग कारखानों में भी वीरानियों ने डेरे डाल लिए। गुलाम मोहम्मदाबाद में साजिंग सेक्टर के बड़े कारखाने तेजी से बंद होने लगे। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज कहते हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में 70% साजिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं। जो चल रहे हैं वो भी निस्फ से कम सलाहियत पर है। पैदावारी लागत बढ़ने से मार्केट में कपड़ा कम फरोख्त हो रहा है, जिससे टेक्सटाइल का पूरा शोबा मुतासिर हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि रहती कसर टैक्सेस की भरमार और महंगे बिलों ने निकाल दी है। कोई शक नहीं है कि तकरीबन ये 70% बंद है, तो बाकी चाह रहे हैं क्योंकि जब स्पिनिंग आपकी बंद होगी, प्रोसेसिंग बंद होगी, तो मतलब अल्टरनेटिव जो है वो मतलब साइजिंग भी फिर बंद ही होना है, क्योंकि ना उतना माल आना, ना उतना उसको यार्ड आना। काम जब होगा तो फिर सारा कुछ चलेगा। सनतकार कहते हैं, अगर हुकूमत ने अब भी तवज्जो ना दी तो मुल्क में बेरोजगारी की नई लहर आएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। नए टैक्सेस, मजीद ड्यूटीज या कोई और बम फटेगा? नया बजट इंडस्ट्रीज के लिए क्या इम्तिहान लाएगा? सनतकार खौफजदा। फैसलाबाद इमाम सनत और तिजारत के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। कौमी नुमाइंदों को बजट तजावीज पेश कर दी। कहते हैं, पुर उम्मीद हूँ रिलीफ नहीं तो कोई इजाफी टैक्सेस भी नहीं लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक की इस्लामाबाद में प्री बजट मुलाकात। हुकूमती नुमाइंदों को बजट के हवाले से तजावीज दी। उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों को इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। रेवेन्यू की जो कमेटी बनाई हुई है उनकी तरफ से कुछ सिफारिशात की थी जो बहुत ही ड्रैकोनियन है और बहुत ही ख़तरनाक हैं बिजनेसेस के लिए। सो हमने उन तमाम चीज़ों को तमाम फोरम्स पे, वी हैड 5 मीटिंग्स, और हमने उन तमाम चीज़ों को तमाम फोरम्स पे प्रॉपर्ली एड्रेस किया। डॉक्टर खुर्रम तारिक कहते हैं कि मुल्की मुआशी हालात की वजह से इंडस्ट्री तो वैसे ही बंद हो रही है। अगर सन्नतकारों पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला गया तो कारोबार मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री पे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस की बातें गुज़श्ता 15 दिन से हो रही हैं, एक्स्ट्रा मुख्तलिफ तरफ से जो टैक्स लगाने की बात हो रही है, मुझे उम्मीद है कि कोई नया टैक्स इंडस्ट्री पे नहीं आएगा। डॉक्टर खुर्रम तारिक ने बताया कि बजट के ज़िम्मेदार हुकूमती नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल इंतहाई मुस्बत था। उम्मीद है कि नए और भारी भरकम टैक्स मजीद नहीं लगाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सरकारी निर्खों पर खाद का हसूल किसानों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। मार्केट में असल कीमत पर खाद न मिलने से किसानों को मुश्किलात, काश्तकारों के शिकवे। कहते हैं कि महंगे दामों खाद खरीद कर अजनास सस्ती कैसे बेचे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। फैसलाबाद में डीलर्स खाद की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। किसान कहते हैं, इस वक्त यूरिया की सरकारी कीमत 2500 रुपए है, जो कि ब्लैक में 3500 रुपए में मिल रही है। कंट्रोल रेट पर खाद कहीं से भी नहीं मिल रही, जिस वजह से मसाइल का सामना है। बारीक दाने वाली खाद है, उसका रेट 2500 है, जो हमें 3000-3500 में मिल रहा है। गवर्नमेंट रेट उसका 2500 है। उसके बाद जो मोटे दाने वाली खाद है उसका रेट 3000 है, वो भी 3500-4000 में मिल रही है। कम से कम अगर गवर्नमेंट रेट में भी मिल जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो ब्लैक में सेल होती है, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। किसान कहते हैं कि महंगी खाद के असरात आने वाले दिनों में अजनास की कीमतों पर भी पड़ेंगे। उनका कहना था कि DAP 11,000 रुपए का बैग है, जो कि खरीदने की सख्त नहीं रखते। हुकूमत काश्तकारों के हालात पर रहम खाकर सब्सिडी का ऐलान करे। यूरिया है वो 11,000 पे पहुंची है, जो कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। किसान अगर वो लेता है तो उसको बचत कोई नहीं होगी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये है कि इसको कम से कम कुछ ना करे तो इसका रेट कंट्रोल किया जाए। काश्तकार कहते हैं, मुतलका हुकाम कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाजरीन, जंग में जनरल बस स्टैंड नए सिरे से तामीर किया जाएगा। अड्डे का PC1 तैयार, 70 करोड़ रुपए लागत आएगी।
PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया। पहले मरहले में अड्डे पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान। निगरान हुकूमत की काविश से झंग का जनरल बस स्टैंड नए सिरे से तामीर करने का फैसला। 70 करोड़ रुपए की लागत का PC1 मंजूरी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के इस मंसूबे में वेटिंग हॉल, 28 टिकटिंग बूथ, मुसाफिरों के लिए 18, खसूसी अफराद के लिए 2 और स्टाफ के लिए 8 टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। जाय नमाज, वजू खाना, टक शॉप, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, दफातर, कंट्रोल रूम, चाय खाना, ड्राइवर्स रेस्ट रूम शामिल हैं, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स ने शुक्रिया अदा किया। हमने बहुत यहाँ मसाइल देखे हैं, इतना मसाइल के 15-20 साल से ये अड्डा बिल्कुल फारिग हो चुका है। लिहाजा ये जो हमें मिला है इसलिए कि वज़ीर आला ने इसका खास नोटिस लिया है और उसने फंड जारी किया है। वज़ीर आला पंजाब है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जंग के लारी अड्डे की तसील की जाए, इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए। ये रोड जो से ख़राब हुए हुए हैं इसको दोबारा बनाया जाए। मुसाफिर तंग होते हैं, इनके लिए आसानी पैदा हो जाए। बसों वैगनों के लिए टर्मिनल्स, पार्किंग स्टैंड्स, प्राइवेट कार पार्किंग, टैक्सी और रिक्शा स्टैंड, रोड बैरियर्स, लारी अड्डे का दाखिली और खारजी गेट बनाया जाएगा। लारी अड्डे से मुंसलिक 2 सड़कों की तामीर, हिफाजती दीवार, सीवरेज के पानी की निकासी, लाइटिंग, सब्जाजार, टफ टाइल्स, रोड समेत कई सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी कहते हैं कि काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। PC1 अप्रूव हो चुके हैं, आपको पता लारी अड्डे के, सीवरेज के आपके हो चुके हैं, ब्यूटिफिकेशन के हो चुके हैं। तो ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि जल्दी से जैसे अप्रूवल होती है तो इसका भी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, टेक्निकल सैंक्शन फिर टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूर नहीं है लारी अड्डा भी इंशाल्लाह। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम का आगाज हो सकेगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। जंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा, शिकायत की रोशनी में नेस्पाक की जानिब से भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई। पत्थर रेत का मयार और कम्पैक्शन की पैमाइश की गई। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखें। झंग गोजरा रोड 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेरे तामीर है। सड़क की तामीर में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर जिला इंतजामिया ने इसका मुआयना करवाया। हमारी जो यूनिवर्सिटी है UT लाहौर, वहाँ हमने इसके सैंपल भेजे हैं और उन सैंपल्स की जो है वो रिजल्ट सारे हमारे पास आ गए हैं और रिजल्ट हमने DC साहब से शेयर भी किए हैं और हमारा जो काम है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल जो है हमारी हाईवे की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। दूसरी जानब नेस्पाक ने भी रोड की सैंपलिंग का अमल शुरू कर दिया। नेस्पाक के साइट इंस्पेक्टर ने बताया कि नमूने लेकर लेबॉर्ट्री इरसाल कर रहे हैं। हमारा जो मटेरियल है ना वो पहले हमारा UT गया है, रोड JRO साहब भी हमारे कम्पैक्शन के रिजल्ट चेक करके गए हैं, तो अब हम असफाल्ट करने के लिए हम बार बार चेक कर रहे हैं। हुकाम कहते हैं कि सड़क की बाकायदा इंस्पेक्शन करके गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत को दूर किया जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के चक 208 की मरकजी शाहराह इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गढ़े ही गढ़े टूट फूट से हादसात मामूल बनने लगे। वासा की जानिब से पाइपलाइन मंसूबे के तहत तोड़ी जाने वाली सड़क तामीर न हो सकी। तफसीलात मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। साबिका हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। चक नंबर 208 की मरकजी शाहराह खस्ता हाली की तस्वीर बन गई। वासा की जानिब से पाइपलाइन मंसूबे के तहत टूटी हुई सड़क तामीर न हो सकी। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं कोई महकमा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 8 महीने हो गए सड़क टूटी हुई, सीवरेज पाया इन्होंने, खड्डे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा मंदा हाल आ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ MNA MP ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ MNA ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, MP ਕੋ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। रही सही कसर सुबह सवेरे से मुसलसल होने वाली हल्की बारिश ने पूरी कर दी। मरकजी शहराह पर बारिशी पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद परेशान, कहते हैं कि मुरम्मती काम ना होने से कोफ्त का शिकार है। स्कूल के तालिब इल्मों को गुजरते वक्त शदीद मुश्किल दरपेश आती है। ताजिर कहते हैं कि रोड की खस्ता हाली की वजह से हमारे कारोबार मुकम्मल तबाह हो गए हैं। परेशानी बहुत है जी। इत्थे बच्चियां दा स्कूल आ, 900 बच्ची पढ़ रही है। कोई इत्थे बाली बारस नहीं, कोई पिंड दा चौर ही नहीं पुछदा, ना कोई इत्थे MNA आ रहा, ना कोई MP आ रहा। परेशानी बहुत आ, लोग परेशान आ लंघण तो, बच्चे लोगों दे परेशान आ, टीचरां बाहरों आउंदियां वो परेशान आ। लिहाजा असीं हुकूमत नूं अर्ज करदे हां कि साडा ये काम छेती तो छेती होना चाहिए। सरकारी महकमों की नाकिस हिकमत अमली की वजह से चक नंबर 208 की मरकजी शाहराह की हालत काबिल रहम हो गई। कैमरामैन मोहम्मद शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल कर लेते हैं झंग से। झंग की गला मंडी बारिशी पानी से भर गई।
एक बारिश ने ही जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी की कारकर्दगी धो डाली। सुबह सवेरे होने वाली बारिश का पानी ताहाल गल्ला मंडी से ना निकाला जा सका। निकासी के लिए अमला ना पहुंचा। बारिशी पानी जमा होने से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक ही बारिश ने जिला इंतजामिया जंग और मार्केट कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सुबह सवेरे होने वाली बारिश का पानी ताहाल गल्ला मंडी से ना निकाला जा सका। गल्ला मंडी में बारिशी पानी जमा होने से रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल पर नोटिस लें। बारिशी पानी खड़ा होने से हम घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। ये 1-1.5 घंटा इधर सिर्फ बारिश आई है तो हाल आपके सामने है। ये पानी अब पूरा हफ्ता सूखने वाला नहीं है। मुसीबत ये है कि इस वक्त ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका अमला ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही हमारे ये मार्केट कमेटी जो है गल्ला मंडी की ये अब इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो यहाँ पे हमारा आना जाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस गल्ला मंडी, लारी अड्डा, रशीद चौक, जंग सिटी और दीगर कई इलाके भी बारिशी पानी में डूब गए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और नाजरीन यहाँ आपको बताएं, साफ पानी की बौसीदा लाइनें टोबा टेक्सिंग के मकीनों में बीमारियां बांटने लगीं। शहरी सीवरेज मिला गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने फौरी पाइपलाइन तब्दील करने की तजवीज दे दी। देखिए मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में बोसीदा पाइपलाइनों के बायस पानी आलूदा होने लगा। शहरी जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर हो गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को चिट्ठी भी लिख दी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग काम का कहना है कि सालाना तरक्याती मनसूबा में स्कीम को शामिल करने की भी तजवीज दी गई है। नई पाइपलाइन बिछाने पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। 3 से 10 इंच तक की पाइपलाइन तब्दील की जाएंगी। शहरियों का कहना है कि सप्लाई का पानी गंदा आता है, जो पीना तो दूर कपड़े धोने के भी काबिल नहीं। पीने के लिए पानी फिल्टर से लेकर आते हैं। पानी अक्सर गंदा आता है और अरसा दराज हो गया। हमारी होश से पहले के गालमन पैप यहाँ पे डले हुए हैं और उसके बाद फिर जो मोहल्ला बख्शी पार्क में लोहे के पैप डले थे वो भी कई जगह पे वो छोटे छोटे मसलन सीवरेज में और ये होदियाँ बनी हुई हैं उनके अंदर आके वो पानी के पैप लोहे के थे वो गल गए और अक्सर पानी जो है ना वो गंदा आता है। शहरियों का ये भी कहना है कि 40 साल कबल बिछाई गई पाइपलाइन को जंग लग चुका है। अक्सर मुकामात पर पाइपलाइन टूटने से नालियों का गंदा पानी भी शामिल होता है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद तहसील सदर के 20 पटवारियों में हल्के तकसीम कर दिए गए। एसी सदर कामरान सगीर ने नए भर्ती होने वाले पटवारियों को हल्के सौंप दिए। तमाम पटवारियों को दिए जाने वाले हल्कों में रिपोर्ट के अहकामात जारी किए गए। फैसलाबाद तहसील सदर के 20 पटवारियों में हल्के तकसीम कर दिए गए। एसी सदर कामरान सगीर ने नए भर्ती होने वाले पटवारियों को हल्के सौंप दिए। तमाम पटवारियों को दिए जाने वाले हल्कों में रिपोर्ट के अहकामात जारी किए गए। पटवारी अदीलाबाद को 78 जीम बे, जबकि सुभान खालिद को चक नंबर 190 सौंपा गया। मोहम्मद उस्मान चक नंबर 37, मोहम्मद शकील को चक नंबर 2, मुनीब चक नंबर 39 में जिम्मेदारियां निभाएंगे। हमाद खालिद गुल को चक नंबर 270, रमजान को चक नंबर 118, हमजा रईस को चक नंबर 267 दिया गया। अरसलान शौकत को चक नंबर 84, हसन सरवर को चक नंबर 274, मोहम्मद मुदस्सिर को चक नंबर 41 सौंपा गया। अफान को चक नंबर 244, हसन वारिस को चक नंबर 82, असद गुलजार को चक नंबर 115 दिया गया। मोहम्मद अब्बास को चक नंबर 268, अली रजा को चक नंबर 659, मोहसिन मंजूर को चक नंबर 113 और फैजानुल हक को चक नंबर 259 हल्का दिया गया।